Hi humans, welcome back to Humanities. This is your psychology educator Asmi, and today we are doing the fifth chapter of class 12 psychology, that is therapeutic approaches. And as the name suggests, this chapter is all about various types of therapeutic approaches, all the therapies, the types of therapies. So इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे. बहुत छोटा सा चैप्टर है. The first topic is therapeutic relationship, and then the different types of therapies, which are behavior, cognitive, humanistic, existential, alternative therapies, factors contributing to healing in psychotherapy, and ethics in psychotherapy, and third is rehabilitation of the mentally ill. So let's get into it. तो सबसे पहले वर्ड हमने पढ़ा साइकोथेरेपी, और ये साइकोथेरेपी है एक वॉलंटरी रिलेशनशिप जो हमने खुद से हमारी मर्ज़ी से एक रिलेशनशिप बनाई है बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट, जिसको हम क्लाइंट बोलते हैं, एंड द वन हु ट्रीट्स, जिसको हम थेरेपिस्ट बोलते हैं. सो थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, वॉलंटरी रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं साइकोथेरेपी. एंड इसका पर्पस होता है to help the client to solve psychological problems being faced by him or her. साइकोथेरेपी का पर्पस क्या होता है, उसको क्यों बनाया जाता है, ताकि क्लाइंट की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहा है उसको सॉल्व करा जा सके. इट इज़ कंड्यूसिव फॉर बिल्डिंग द ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट सो दैट द प्रॉब्लम्स में बी फ्रीली डिस्कस्ड. प्रॉब्लम्स को फ्रीली डिस्कस करने में, ताकि क्लाइंट को कोई हेजिटेशन ना हो, इसलिए ये रिलेशनशिप बनाया जाता है. एंड जो हमारी साइकोथेरेपीज़ होती हैं, दे एम एट चेंजिंग द मैल अडेप्टिव बिहेवियर, decreasing the sense of personal distress and helping the client to adopt better to his or her environment. This was all about psychotherapy. अब जो साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोचेस होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं. सबसे पहले सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल अंडरलाइंग द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ थेरेपी. सो हर एक थेरेपी का एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन होता है, मतलब हम इसी तरह से यही स्टेप्स फॉलो करके हम उस थेरेपी को अप्लाई कर सकते हैं. And person who have received practical training under the expert supervision can practice psychotherapy and not everybody. So बहुत ही इंटेंसिव ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. जो लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिली हुई है सिर्फ वो ही प्रैक्टिस कर सकते हैं साइकोथेरेपी, हर कोई इंसान नहीं कर सकता. Therapeutic situation involves a therapist and a client who seeks and receives help for his or her emotional problems. ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है. दो लोग होते हैं, एक थेरेपिस्ट होता है, एक क्लाइंट होता है. थेरेपिस्ट हेल्प करता है एंड क्लाइंट हेल्प सीक करता है, हेल्प लेता है थेरेपिस्ट की. The interaction between the two person, the therapist and the client, result in the confidential, interpersonal and dynamic relationship. So this was all about the characteristics of psychotherapeutic approaches. So guys, you all know that I'm teaching psychology on this channel, but I also have my own YouTube channel, Humanities Forum, where I am coming up with very exciting and informative videos. I'll share with you guys my own journey, my tips and tricks, and my own handwritten notes which helped me score 100 on 100 in class 12th. So go right now and subscribe to Humanities Forum. जो हमारी साइकोथेरेपीज़ होती हैं उनके कुछ एम्स होते हैं. reinforcing client resolve for betterment, lessening emotional pressure, unfolding the potential for positive growth, modifying habits, changing thinking pattern, increasing self-awareness, improving interpersonal relation and communication, facilitating decision making, becoming aware of one's choice in life and relating to one's social environment in a more creative and self-aware manner. ये 10 एम हैं साइकोथेरेपीज़ के. इनमें से आपको बस 4-5 याद रख लेना. कभी कभार ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मेंशन सम एम ऑफ द साइकोथेरेपी. सो आपको बस 4-5 याद होने चाहिए. थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं. द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट इज़ नोन एज थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप. जो रिलेशनशिप होता है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में उसको थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बोलते हैं या फिर थेरेप्यूटिक अलायंस. सो इस थेरेप्यूटिक अलायंस के 2 कॉम्पोनेंट होते हैं. सबसे पहला कॉम्पोनेंट होता है कि इसका कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर होता है.
in which two willing individuals, the client and the therapist, they come into a partnership. एक पार्टनरशिप में वो एंटर करते हैं which aims at helping the client overcome his or her problem. So इसका नेचर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर होता है. एक काइंड ऑफ पार्टनरशिप हो जाती है एक थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में कि भाई हम एक पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि क्लाइंट की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जा सके. सेकेंड कॉम्पोनेंट of therapeutic alliance is the limited duration of the therapy. कुछ limited time के लिए ही होती है therapy. This alliance lasts until the client becomes able to deal with his or her problems and take control of his or her life. So जब client की problem solve हो जाती है तो वो जो alliance होती है, relationship होती है, वो ख़त्म हो जाती है. So एक limited duration होता है therapeutic relationship का. These were the two major components of therapeutic alliance जो आपको याद रहने चाहिए. The high level of trust enables the client to unburden herself or himself to the therapist and confide his or her psychological and personal problems. So एक high level of trust होना चाहिए. मतलब आप थेरेपिस्ट पे विश्वास करते हो, इतना विश्वास करते हो कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स बिना कोई हेजिटेशन के उसको बता सकते हो. The therapist encourages this by being accepting, genuine, warm. The therapist conveys by his or her words and behavior that he or she is not judging. मतलब बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए थेरेपिस्ट को. आराम से एक वार्म नेचर के साथ जेन्युइनली प्रॉब्लम सुननी चाहिए क्लाइंट की. एंड थेरेपिस्ट शुड हैज़ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मतलब अगर आपको एक क्लाइंट गलत चीज़ें बता रहा है या फिर बुरी चीज़ें उसने कुछ करी है जो वो थेरेपिस्ट को बता रहा है, स्टिल उसको थेरेपिस्ट को पॉजिटिव रहना है, बहुत ही जेन्युइन रहना है, एक्सेप्टिंग रहना है. इसको बोलते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. अब दो टर्म्स हैं, एम्पैथी एंड सिंपैथी. इन दोनों में डिफरेंस होता है. सिंपैथी में वन हैज़ कंपैशन एंड पिटी टुवर्ड्स द सफरिंग ऑफ अनदर बट इट इज़ नॉट एबल टू फील लाइक द अदर पर्सन. सो सिंपैथी हम कहते हैं कि हम सिंपैथी के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो इसमें कंपैशन होता है एंड पिटी होती है टुवर्ड्स द सफरिंग ऑफ अनदर. हैंड हम दूसरों की तरह फील नहीं करते, हम उसकी प्लेस पे जाकर उसकी फीलिंग्स को नहीं समझते. बट ऑन द अदर हैंड एम्पैथी इज प्रेजेंट व्हेन वन इज एबल टू अंडरस्टैंड and one is able to understand the plight of another person and feel like the other person. So एक थेरेपिस्ट में एम्पैथी होनी चाहिए, सिंपैथी नहीं. वो क्लाइंट को समझ सके एंड उसकी तरह फील कर सके. सो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज़ के बारे में, एंड जिसमें सबसे पहले आती है बिहेवियर थेरेपी. एंड ये थेरेपी बोलती है कि जो हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो आती है हमारे फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न से या फिर फॉल्टी थॉट पैटर्न से. इट इज़ देयरफॉर फोकस्ड ऑन द बिहेवियर एंड थॉट्स ऑफ द क्लाइंट इन द प्रेजेंट. बिहेवियर थेरेपी बोलती है कि जो हमारी ख़राब बिहेवियर पैटर्न्स हैं, हमारे ख़राब थॉट पैटर्न्स हैं, इनकी वजह से हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. द पास्ट इज़ रेलिवेंट ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन्स ऑफ द फॉल्टी बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न्स. सो बिहेवियर थेरेपी में पास्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, प्रेजेंट के बारे में हम बात करते हैं. पास्ट इज़ ओनली रेलिवेंट टू द एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन्स. मतलब कहाँ से हमारा ख़राब बिहेवियर पैटर्न्स, कहाँ से हमारा ख़राब थॉट पैटर्न्स जन्मा, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, बस वो जानने के लिए हम पास्ट को देखते हैं. बट पास्ट इज़ नॉट एक्टिवेटेड और रीलिव्ड, ओनली द फॉल्टी पैटर्न्स आर करेक्टेड इन द प्रेजेंट. हमारे बिहेवियर थेरेपी में बहुत सारी स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग तरह की टेक्निक्स होती हैं. ये एक यूनिफाइड थ्योरी नहीं है. बिना किसी क्लिनिकल डायग्नोसिस के या सिम्टम्स के हम बिहेवियर थेरेपी नहीं यूज़ कर सकते. सो बिहेवियर थेरेपी जैसे मैंने बताया एक यूनिफाइड थ्योरी है जिसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स हैं. एंड हमें कैसे पता चलता है कि हमें कौन सी टेक्निक किस क्लाइंट पे यूज़ करनी है? By the symptoms and the client diagnosis. They are the guiding factors. वो हमें बताते हैं कि हमें कौन सी स्पेसिफिक टेक्निक यूज़ करनी है, अप्लाई करनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल फोबिया के ट्रीटमेंट के लिए या फिर एंगर आउटबर्स्ट के ट्रीटमेंट के लिए दो डिफरेंट टेक्निक यूज़ होती है.
फोबिया के बारे में हमने 4th चैप्टर में पढ़ा हुआ है मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। सो बिहेवियर थेरेपी में ट्रीटमेंट करा कैसे जाता है, किस तरह से ट्रीटमेंट करा जाता है। क्लाइंट विथ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और विथ फिजिकल सिम्टम्स which cannot be attributed to physical disease is interviewed with a view to analyze his or her behavior pattern। So सबसे पहला स्टेप है बिहेवियर थेरेपी का कि क्लाइंट का इंटरव्यू लिया जाता है जानने के लिए, एनालाइज करने के लिए उसका बिहेवियर पैटर्न। इंटरव्यू के बाद हम बिहेवियर को एनालाइज करते हैं एंड हम फाइंड करते हैं 3 चीज़ें जिसको हम बोलते हैं MAM। Malfunctioning behaviors, antecedents of faulty learning and maintaining factors। ये तीनों चीज़ें हमें पता लगानी होती है। Malfunctioning behavior वो behavior होता है which causes distress to client। For example, एक client है जो smoke करता है, so smoking is a behavior which cause distress to client। so smoking हो गया हमारा malfunctioning behavior। Antecedents of faulty learning। Antecedent factors are those causes which predispose the person to indulge in that behavior। मतलब जो क्लाइंट हमारा स्मोक कर रहा है वो किसी वजह से स्मोक कर रहा है। क्यों स्मोक कर रहा है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। कोई उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, इसलिए वो स्मोक कर रहा है। तो हमारा एंटीसीडेंट फैक्टर हो गया स्ट्रेस और मैल फंक्शनिंग बिहेवियर हो गया हमारा स्मोकिंग। थर्ड इज मेंटेनिंग फैक्टर्स। फैक्टर्स विच लीड टू द परसिस्टेंस ऑफ द फॉल्टी बिहेवियर। मतलब अगर हमारा क्लाइंट स्मोक कर रहा है तो वो बिहेवियर वो बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, परसिस्टेंस क्यों हो रही है फॉल्टी बिहेवियर की, तो उसका भी कोई रीज़न होगा। उसका रीज़न ये हो सकता है कि स्मोक करने से उसे रिलीफ महसूस होता है, ही फील लेस स्ट्रेस्ड, उसे कोई प्लेजर मिलता है स्मोक करने से, सो वो हमारा मेंटेनिंग फैक्टर हो जाएगा। सो दीज वर द 3 थिंग्स जो हम एनालाइज करते हैं आफ्टर इंटरव्यूइंग द क्लाइंट। वंस द फॉल्टी बिहेवियर्स विच कॉज डिस्ट्रेस have been identified, a treatment package is chosen। अब इस ट्रीटमेंट का एम होता है to distinguish और eliminate the faulty behavior and substitute them, मतलब बदल देना with adoptive behavior patterns। So basically the aim of the treatment is कि जो faulty behavior है, जो गलत काम है, for example smoking, उसको हम substitute कर दें एक सही काम से with adoptive behavior patterns। The therapist does this through establishing antecedents operation and consequent operations। ये चीज़ क्या होती है? Antecedent operations control behavior by changing something that precedes such behavior। The change can be done by increasing or decreasing the reinforcing value of a particular consequence। दिस इज़ कॉल्ड एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशंस। सो इसको और अच्छे से समझने के लिए NCERT में एक एग्जाम्पल दिया है कि इफ़ अ चाइल्ड गिव्स ट्रबल इन ईटिंग डिनर, अगर एक बच्चा डिनर करने में दिक्कत करता है, डिनर नहीं करता अच्छे से, देन एन एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन वुड बी टू डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड सर्व्ड एट टी टाइम। This would increase the hunger at dinner and thereby increase the reinforcing value of food at dinner। मतलब बेसिकली अगर डिनर के समय बच्चे को भूख नहीं लगती तो हम टी टाइम पे उसको कम खाना देंगे ताकि डिनर के वक्त ज़्यादा भूख लगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन। अब बिहेवियर थेरेपीज़ के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं एंड उन सारी टेक्निक्स को हमें पढ़ना है। सबसे पहले है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, aversive conditioning, positive reinforcement, token economy, differentiation reinforcement, systematic desensitization and modeling। So negative reinforcement is responses that lead organism to get rid of the painful stimuli or avoid and escape from them। फॉर एग्ज़ाम्पल जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है हम अपने आप गर्म कपड़े पहन लेते हैं, हम हीटर चला लेते हैं। सो दीज आर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठंड से बचने के लिए हमने वुलन क्लोथ्स पहन लिए, हमने इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज़ करा टू अवॉइड द अनप्लेजेंट कोल्ड। सो दिस इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि एक अल्कोहलिक है एंड
जब भी वो क्लाइंट या कोई ऑर्गेनिज्म स्मेल करता है अल्कोहल को, उसके साथ पेयर होके आता है एक इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। सो विद रिपीटेड पेयरिंग्स ऑफ स्मेल ऑफ अल्कोहल इज अवर्सिव एज द पेन ऑफ द शॉक इज एसोसिएटेड विद इट। सो जैसे जैसे वो अल्कोहल को स्मेल करेगा उसे पेन होगा शॉक की वजह से, सो वो अवर्सिव हो जाएगा अल्कोहल से। Third is positive reinforcement. If an adaptive behavior occurs rarely, positive reinforcement is given to increase the deficit. For example, a child does not do his or her homework. So, positive reinforcement is used by the mother and she prepares the child's favorite dish whenever he or she does not do his or her homework. So, होमवर्क कंप्लीट करवाने के लिए मदर प्रिपेयर करती है फेवरेट डिश। सो दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। टोकन इकोनॉमी, persons with behavioral patterns can be given a token as a reward every time a wanted behavior occurs. सो टोकन इकोनॉमी में बेसिकली क्या होता है, एक टोकन दिया जाता है क्लाइंट को जब भी वो कोई वांटेड बिहेवियर करता है, कोई अच्छा काम करता है, अच्छा बिहेवियर जब उसका होता है तो उसको एक टोकन दिया जाता है एज अ रिवॉर्ड। Tokens are collected and exchanged for a reward such as an outing for the patient or a treat for the child. So, for example, at the end of the month के ख़त्म होते ही जितने भी टोकन मिले हैं उन सबको कलेक्ट करके एक गिफ्ट दिया जाता है, जैसे कि बाहर घूमने जाना या फिर अ ट्रीट फॉर द चाइल्ड। डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट में हमारा अनवांटेड बिहेवियर को हम कम कर सकते हैं, अनवांटेड बिहेवियर को बढ़ा सकते हैं एक साथ साइमल्टेनियसली एट सेम टाइम। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम यूज़ करते हैं फॉर द वांटेड बिहेवियर एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हम यूज़ करते हैं फॉर द अनवांटेड बिहेवियर। The other method is to positively reinforce the wanted behavior and to ignore the unwanted behavior. This method is less painful and equally effective. Next is systematic desensitization and this is very important. इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस करा था वॉल्प ने फॉर ट्रीटिंग फोबियाज और इर्रेशनल फियर, जिसके बारे में हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है देन गो वॉच इट। सो फोबिया को ट्रीट करने के लिए वॉल्प ने ये टेक्निक इंट्रोड्यूस करी। सो इस टेक्निक में सबसे पहले क्लाइंट इज इंटरव्यूड टू एलिसिट fear provoking situations and together with the client the therapist prepares a hierarchy of anxiety provoking stimuli with the least anxiety provoking stimuli at the bottom of the hierarchy. So सबसे पहले क्लाइंट का हमने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद जो थेरेपिस्ट होता है क्लाइंट के साथ एक लिस्ट बना लेता है, एक हायरार्की बना लेता है, जिसमें सबसे ऊपर होता है एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई। जो स्टिमुलाई, जो इन्वायरमेंट, कोई भी सिचुएशन जो क्लाइंट को सबसे ज़्यादा एंजाइटी देती है वो हो गया हमारा नंबर 1 पे, वो टॉप पे लिखा जाता है। एंड देन लास्ट होता है हमारा लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई। सो ऐसे करके एक हायरार्की बना लेते हैं। देन the therapist relaxes the client and asks the client to think about the least anxiety provoking situation, and client is asked to stop thinking of the fearful situation if the slightest tension is felt. So जो हमने लिस्ट बनाई उस लिस्ट में से जो सबसे लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई होता है उसको, उसके बारे में क्लाइंट सोचता है एंड क्लाइंट को बोला जाता है टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट इफ़ he or she feels slightest tension. So बहुत सारे सेशंस के बाद जो हमारा क्लाइंट होता है he or she is able to imagine more severe fear provoking situations while maintaining the relaxation. So सबसे पहले हमने least anxiety provoking stimuli के बारे में इमेजिन करा, देन सेशन बाय सेशन आगे बढ़ते बढ़ते क्लाइंट हमारा सबसे ज़्यादा सीवियर फियर प्रोवोकिंग सिचुएशंस के बारे में भी सोच पाता है, इमेजिन कर पाता है वाइल मेंटेनिंग रिलैक्सेशन। सो दिस वाज सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिकली हम डीसेंसिटाइज होते रहते हैं। इसमें एक और चीज़ है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। This principle states that the presence of two mutually opposing forces at the same time
inhibits the weaker force. The relaxation response is first built up, and mildly anxiety provoking scene is imagined, and then the anxiety is overcome by the relaxation. So पहले बेसिकली क्लाइंट का रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स बिल्ड करा जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्लाइंट को सिखाया जाता है कि वो रिलैक्स कैसे रहे, एंड जब वो रिलैक्स रहना सीख जाता है देन वो बहुत ज़्यादा सीवियर एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई को भी इमेजिन कर सकता है वाइल मेंटेनिंग रिलैक्सेशन। सो द मेन पॉइंट इज़ टू बिल्ड द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स ताकि client is able to tolerate progressively greater levels of anxiety. लास्ट इज़ मॉडलिंग। मॉडलिंग में बेसिकली कुछ नहीं होता, ये एक प्रोसीजर है जिसमें क्लाइंट लर्न कर लेता है बिहेव करना इन अ सर्टन वे बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अ रोल मॉडल और थेरेपिस्ट। सो थेरेपिस्ट को देख के या फिर किसी भी रोल मॉडल को देखकर उनका बिहेवियर सीख लेता है क्लाइंट इस प्रोसीजर में। सो इसको बोलते हैं मॉडलिंग। अब बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की, जो बोलती है कि हमारे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस दे अराइज फ्रॉम द फीलिंग ऑफ LAI, लोनलीनेस, एलिनेशन एंड एन इनएबिलिटी टू फाइंड मीनिंग एंड जेन्युइन फुलफिलमेंट इन लाइफ। तो ये 3 फीलिंग्स हैं जिससे हमें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो सकता है। ह्यूमन बींग्स are motivated by the desire for personal growth and self-actualization, जिसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, and an innate need to grow emotionally. So DSI, ये मैंने सारे एब्रीविएशंस बना रखे हैं, शॉर्ट फॉर्म्स बना रखी हैं ताकि ईजी हो याद करने में। सो पर्सनल ग्रोथ के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए एंड टू ग्रो इमोशनली, ये सारी चीज़ों से ह्यूमन बींग्स होते हैं मोटिवेटेड। जब हम ये सारी चीज़ें फुलफ़िल नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते एंड हमारी नीड्स आर कर्व्ड बाय द सोसाइटी एंड फैमिली, देन ह्यूमन बींग्स एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमें पता है क्या होता है, फुलफिलमेंट ऑफ आर पोटेंशियल एंड टू अचीव आर गोल्स। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को इस चैप्टर में डिफाइन करा है एज एन इनेट और इनबॉर्न फोर्स दैट मूव्स द पर्सन टू बिकम मोर CBI, that is complex, balanced and integrated, that is achieving the complexity and balance without being fragmented. So this is how you define self actualization. Integrated का मतलब होता है sense of whole, being a complete person and being in the essence the same person in spite of the variety of experiences that one is subjected to. तो इंटीग्रेटेड होना, कॉम्प्लेक्स होना, बैलेंस्ड होना, एक होल रहना, एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग की तरह रहना, ये फीलिंग होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। एंड इंटीग्रेटेड का मतलब कि चाहे हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आएँ, कोई भी हमारे साथ एक्सपीरियंसेस हों, बट हम सेम पर्सन रहें। हीलिंग क्या होती है? Healing occurs when the client is able to perceive the obstacles to self-actualization in his or her life and is able to remove them. Self-actualization requires free emotional expression, which gets curbed by the family and society. So self-actualization के लिए, अपने पोटेंशियल को फुलफ़िल करने के लिए हमें चाहिए फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन, कि हम अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएँ। बट हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि सोसाइटी की वजह से, फैमिली की वजह से। सो इसलिए हमें डिस्ट्रेस हो सकता है, हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि हम अपने आप की फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। Therefore, the therapy creates a permissive, non-judgmental and accepting atmosphere. जो हम थेरेपीज़ में जाते हैं, वो थेरेपीज़ एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है कि हम फ्रीली अपनी एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को हम बता सकते हैं। नॉन जजमेंटल एटमॉस्फेयर होता है, कोई जज करने वाला नहीं होगा, कोई आपके डिसीजंस को गलत या सही नहीं बोलेगा। एक्सेप्टिंग एटमॉस्फेयर होता है बहुत ज़्यादा। सो ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाइंट के ऊपर। क्लाइंट के पास फ्रीडम होती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने आप का बिहेवियर कंट्रोल करने की। थेरेपिस्ट एक
मेयरली फैसिलिटेटर होता है, एक गाइड होता है, बट क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना इम्प्रूव करना चाहता है, कितना अपने आप को एज अ पर्सन वो ग्रो करना चाहता है. द चीफ एम ऑफ द थेरेपी इज़ टू एक्सपैंड द क्लाइंट्स अवेयरनेस. Healings take place by the process of understanding the unique personal experience of the client by herself or himself. क्लाइंट ही है जो पूरा प्रोसेस स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है ऑफ सेल्फ ग्रोथ. ठीक है. सो क्लाइंट जब तक खुद नहीं चाहेगा ग्रो करना, अपने गोल्स को अचीव करना, तब तक ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल थेरेपी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, हीलिंग टेक प्लेस नहीं कर पाएगी. नेक्स्ट इज़ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, जिसको बनाया कार्ल रॉजर्स ने, एंड उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सेल्फ का विथ फ्रीडम एंड चॉइस एज द कोर ऑफ वंस बीइंग. सो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी हमारी प्रोवाइड करती है एक वार्म रिलेशनशिप इन विच द क्लाइंट कैन रिकनेक्ट with his or her disintegrated feelings. सो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में एक वार्म रिलेशनशिप होता है जिसमें क्लाइंट रिकनेक्ट करता है अपनी डिसइंटीग्रेटेड फीलिंग्स के साथ. थेरेपिस्ट क्या होता है? थेरेपिस्ट शोज एम्पैथी, इज़ वार्म एंड हैज़ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा था. टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट एज ही और शी इज़, मतलब एक अगर क्लाइंट ने कुछ गलत काम भी करा है एंड वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है तो हमें उसको भी एक्सेप्ट करना है, नॉन जजमेंटल होकर. हमें उसको जज नहीं करना है. इट इज़ द टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट एज ही और शी इज़. दिस यूनिक अनकंडीशनल वार्मथ ensure that the client feels secure and can trust the therapist. That is why unconditional positive regard is very important in therapy. अगर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड नहीं होगा तो क्लाइंट सिक्योर नहीं फील कर पाएगा, वो थेरेपिस्ट को ट्रस्ट नहीं कर पाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्लाइंट फील सिक्योर इनफ टू एक्सप्लोर हिज और हर फीलिंग्स. सो जब एक क्लाइंट सिक्योर फील करता है, प्रोटेक्टेड फील करता है, देन वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करता है एंड उनको एक्सप्रेस कर पाता है. नाउ द थेरेपिस्ट रिफ्लेक्ट्स द फीलिंग ऑफ द क्लाइंट इन अ नॉन जजमेंटल मैनर. जैसे मैंने बताया, थेरेपिस्ट को नॉन जजमेंटल रहना पड़ता है एंड वो क्लाइंट की फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है. रिफ्लेक्शन इज़ अचीव्ड बाय रीफ्रेजिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ द क्लाइंट दैट इज सीकिंग सिंपल क्लैरिफिकेशन टू इन्हांस द मीनिंग ऑफ द क्लाइंट स्टेटमेंट. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि थेरेपिस्ट क्लाइंट की बातों को रीफ्रेज करता है, उसको दोहराता है एंड सिंपल क्लैरिफिकेशंस लेता है क्लाइंट से कि क्या कि जो तुम मुझे बताना चाह रहे हो, क्या मैं उसको समझ रहा हूँ, क्या ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ हुई थी, क्या मैं तुमको अच्छे से समझ पा रहा हूँ. सो दिस इज़ सीकिंग सिंपल क्लैरिफिकेशंस. दिस इज़ हाउ द थेरेपिस्ट रिफ्लेक्ट द फीलिंग ऑफ द क्लाइंट. So, this therapy helps a client to become his or her real self with the therapist working as a facilitator. So, this was all about the client-centered therapy. Next is Gestalt therapy, and Gestalt का मतलब होता है whole. ये थेरेपी दी गई थी बाय फ्रेडरिक पेरी with his wife Laura Perry. And the goal of Gestalt therapy is to increase an individual's self-awareness एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस. तो ये दो चीज़ें याद रखना, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस. सो इस थेरेपी में क्लाइंट को सिखाया जाता है अपने बॉडीली प्रोसेसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको समझने के लिए कि हमारी बॉडी बताना क्या चाह रही है, एंड द इमोशंस दैट आर बीइंग ब्लॉक्ड आउट फ्रॉम अवेयरनेस. उन इमोशंस को समझना, उनको रिकॉग्नाइज करना जो हमारी अवेयरनेस में नहीं है, जिनके बारे में हम अवेयर नहीं हैं. द थेरेपिस्ट डज दिस बाय इनकरेजिंग द क्लाइंट टू एक्ट आउट फैंटेसीज अबाउट द फीलिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट. एंड दिस थेरेपी कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन ग्रुप सेटिंग्स. सो ये याद रखना गेस्टॉल्ट थेरेपी के बारे में, किसने बनाया था, क्या मतलब है गेस्टॉल्ट का, गोल क्या है, क्या बताया जाता है, एंड वो कि वो ग्रुप सेटिंग में भी यूज़ हो सकती है. अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ के बारे में. एंड इनको ऑल्टरनेटिव बोला जाता है क्योंकि ये एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है टू द कन्वेंशनल ड्रग ट्रीटमेंट और साइकोथेरेपी.
सो साइकोथेरेपी के अलावा भी हमारे पास एक ट्रीटमेंट है जिसको हम ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ बोलते हैं, एंड इस थेरेपी में आता है योगा, मेडिटेशन, विपस्सना मेडिटेशन। सो इन सब चीज़ों से भी वी कैन ओवरकम दी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। देखते हैं कैसे। योगा एक एंशंट इंडियन टेक्निक है जिसके बारे में हमें पता है, हम लोग योगा करते भी हैं, योगा डे सेलिब्रेट भी करते हैं। सो योगा हमारे बहुत सारे आसन्स होते हैं, बॉडी पोस्चर कंपोनेंट होता है, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, ये सब हमें पता है। मेडिटेशन, प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग अटेंशन ऑन ब्रीदिंग और एन ऑब्जेक्ट और थॉट और अ मंत्रा, ये हो गया मेडिटेशन। विपस्सना मेडिटेशन को हम माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन भी बोलते हैं, एंड इसमें एक कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई थॉट नहीं होता हमारी अटेंशन होल्ड करने के लिए। इसमें पर्सन ऑब्जर्व करता है बहुत सारी बॉडीली सेंसेशंस को एंड थॉट्स को दैट आर पासिंग थ्रू इन हिज और हर अवेयरनेस। सुदर्शना क्रिया योगा, जिसको हम स्काई भी बोलते हैं, ये होती है रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक्स, ठीक है। एंड इसको माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लो रिस्क है, लो कॉस्ट है टू द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, PTSD, depression, stress-related medical illnesses, substance abuse and rehabilitation of criminal offenders. So इन सब चीज़ों के लिए स्काई को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। इन सब डिसऑर्डर्स के बारे में हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो गो वॉच दैट वीडियो। नेक्स्ट इज कुलदनी योगा। Kuldani Yoga is taught in USA and it has been found to be very effective in the treatment of mental disorders. Basically, Kuldani Yoga is very effective for the treatment of obsessive compulsive disorder, OCD के लिए बहुत ज़्यादा beneficial है। It combines pranayam और breathing techniques with chanting of mantra. Prevention of repeated episodes of depression may be helped by mindfulness based meditation और vipassana. अब बात करते हैं एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की, जिसमें विक्टर फ्रैंकल ने, जो एक साइकियाट्रिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट थे, प्रपाउंड करा लोगो थेरेपी। लोगो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सोल, एंड लोगो थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट फॉर द सोल। So Frankl calls this process of finding meaning even in life-threatening circumstances as the process of meaning making. So फ्रैंकल ने एक प्रोसेस बनाया एंड उसको बोला प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। मतलब वी ह्यूमन बीइंग्स वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड मीनिंग इन आवर लाइफ इवन इन लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टांसेस। सो फ्रैंकल ने ये बोला कि जैसे हमें पता है कि एक अनकॉन्शियस होता है, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, वैसे ही एक स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस होता है विच इज़ द स्टोर हाउस ऑफ लव, aesthetic awareness and values of life. Neurotic anxiety arise when the problems of life are attached to the psychological, physical or spiritual aspects of one's existence. So, फ्रैंकल ये बोलते हैं कि हमें एंजाइटी हो सकती है अगर हमें अपनी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में कोई दिक्कत है, या फिर वी कांट फाइंड द स्पिरिचुअल ट्रुथ ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. Frankl emphasized the role of spiritual anxieties in leading to meaninglessness and hence it may be called an existential anxiety. So जब हमें अपनी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं मिलता, हमें अपना स्पिरिचुअल ट्रुथ नहीं पता चलता हमारी एग्जिस्टेंस का, इससे हमें हो सकती है एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी. नाउ लोगोथेरेपी का गोल होता है टू हेल्प द पेशेंट टू फाइंड मीनिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर लाइफ. चाहे उनकी लाइफ में कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो रहे हों, लोगोथेरेपी हेल्प करती है पेशेंट को टू फाइंड मीनिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड द थेरेपिस्ट एम्फसाइज द यूनिक नेचर ऑफ द पेशेंट लाइफ एंड इनकरेजेस देम टू फाइंड मीनिंग इन देयर लाइफ. नाउ लोगोथेरेपी की एक खास बात है कि इसमें थेरेपिस्ट इज़ वेरी ओपन एंड ही और शी शेयर्स देयर फीलिंग्स. ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स, अपने वैल्यूज़, अपने खुद की एग्जिस्टेंस शेयर करते हैं क्लाइंट के साथ. एंड द एम्फेसिस इज ऑन हेयर एंड नाउ. थेरेपिस्ट रिमाइंड द क्लाइंट अबाउट द इमीडिएसी ऑफ द प्रेजेंट.
So the goal is to facilitate the client to find meaning of his or her being. So this was all about the existential therapy. अब बात करते हैं कॉग्निटिव थेरेपी की। एंड इस थेरेपी में बहुत सारी डिफरेंट टाइप की थेरेपीज़ आती हैं। सबसे पहले है रैशनल इमोटिव थेरेपी, जिसको बनाया था एल्बर्ट आइलेस ने। सो एल्बर्ट आइलेस ने बोला कि RET therapy is that irrational beliefs mediate between antecedent events and their consequences. सो एंटीसीडेंट्स हमें पता है क्या होते हैं, वो इवेंट्स, वो ऐसे इवेंट्स जो हमें कॉज करते हैं साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप इन RET इज़ द एंटीसीडेंट बिलीफ कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा कॉज होता है, एंटीसीडेंट इवेंट होता है, उसको हम नोट कर लेते हैं। फिर हम क्लाइंट का इंटरव्यू लेते हैं टू फाइंड द इर्रेशनल बिलीव्स विच आर चेंजिंग द प्रेजेंट रियलिटी। अब इर्रेशनल बिलीव्स होते क्या हैं? ये एक ऐसे बिलीव्स होते हैं विच आर कैटेगराइज्ड बाय द थॉट ऑफ मस्ट या शुड। जैसे मुझे सब लोग हमेशा प्यार करते रहने चाहिए, वन शुड बी लव्ड बाय एवरीबडी ऑल द टाइम। ये एक इर्रेशनल बिलीव है। This distorted perception of the antecedent event due to the irrational belief leads to the consequence that is negative emotions and behavior. अब इस irrational belief की वजह से कि मुझे सब लोग हमेशा प्यार करने चाहिए, इससे मेरा बनता है नेगेटिव इमोशन एंड बिहेवियर। अब इसको ठीक कैसे करा जाता है? इर्रेशनल बिलीव्स को हम असेस करते हैं थ्रू क्वेश्चनर एंड इंटरव्यू। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ RET में इर्रेशनल बिलीव्स आर रिफ्यूटेड बाय द थेरेपिस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग। सो थेरेपिस्ट एक नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग करता है टू द क्लाइंट। अब ये जो क्वेश्चनिंग होती है वो बहुत जेंटल होती है, विदाउट बीइंग प्रॉबिंग और डायरेक्ट। ठीक है, एंड द क्वेश्चंस मेक द क्लाइंट थिंक डीपर इनटू हिज और हर अजम्पशंस अबाउट द लाइफ एंड द प्रॉब्लम्स। अब धीरे धीरे client is able to change the irrational beliefs by making a change in his or her philosophy about life. So over the sessions client is able to change his or her beliefs. ठीक है, rational belief system replace कर देता है irrational belief system को, and hence there is a reduction in the psychological distress. So this was RET, rational emotive therapy. नेक्स्ट है एरन बेक्स की कॉग्निटिव थ्योरी। एंड इस थ्योरी में बोला गया है कि जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमें प्रोवाइड करती है फैमिली या फिर सोसाइटी, वो डेवलप करते हैं कुछ कोर स्कीमास और सिस्टम्स हमारे अंदर, विच इंक्लूड बिलीव्स एंड एक्शन पैटर्न्स। सो फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाइंट है, एक बच्चा है जो हमेशा से निगलेक्ट होते आया है बाय हिज और हर पेरेंट्स। हमेशा उसके पेरेंट्स उसकी कदर नहीं करते, उसकी केयर नहीं करते। सो उस बच्चे के अंदर एक कोर स्कीमा डेवलप हो जाता है ऑफ आई एम नॉट वांटेड। उसको लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। एंड दिस इज़ वाई अगर उसकी लाइफ में कोई भी ऐसा क्रिटिकल इंसिडेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल ही और शी इज़ पब्लिकली रिडिक्यूल्ड बाय द टीचर, अगर किसी टीचर ने उसको पब्लिकली रिडिक्यूल कर दिया, देन दिस क्रिटिकल इंसिडेंट ट्रिगर्स द कोर स्कीमा ऑफ आई एम नॉट वांटेड, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। तब उस बच्चे के मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएंगे। अब ये नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं? ये होते हैं परसिस्टेंट इर्रेशनल थॉट्स, सच एज नोबडी लव्स मी, आई एम अगली, आई एम स्टूपिड, आई विल नॉट सक्सीड। एंड ये सारे नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स दे आर कैटेगराइज्ड बाय कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। अब ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, these are the ways of thinking which are general in nature but distort the reality in a negative manner. हमारे रियलिटी को चेंज कर देते हैं नेगेटिव मैनर में। एंड दीज पैटर्न्स ऑफ थॉट्स आर कॉल्ड डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। ये सारे नाम याद रखने वाले हैं, की टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। दे लीड टू एरर ऑफ कॉग्निशन अबाउट द सोशल रियलिटी। अब जब ये नेगेटिव थॉट्स बार बार आते रहते हैं, रिपीटेड अकरेंस होती है इनकी, सो हमारे डेवलप हो जाती है फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन।
सो इसको ठीक कैसे करा जाता है? द थेरेपिस्ट यूजेस क्वेश्चनिंग। इसमें भी क्वेश्चनिंग होती है जो बहुत जेंटल होती है, नॉन थ्रेटनिंग होती है। एंड कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हैं, जैसे व्हाई शुड एवरीवन लव यू, व्हाट डज इट मीन टू यू टू सक्सीड। नाउ ये सारे क्वेश्चंस मेक द क्लाइंट थिंक इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। सो धीरे धीरे द क्लाइंट गेन्स इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ हिज और हर डिसफंक्शनल स्कीमास, एंड वो उनको चेंज कर पाता है। Now, the aim of the therapy is to achieve this cognitive restructuring, which in turn reduces anxiety and depression. So, this was Aaron Beck की cognitive theory. Last therapy is cognitive behavior therapy, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड इसको CBT भी बोला जाता है। नाउ CBT बहुत शॉर्ट एंड एफिकेशियस ट्रीटमेंट है फॉर अ वाइड रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक एंड बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी। सो इन सारे डिसऑर्डर्स को हम ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CBT। नाउ CBT में होता क्या है? CBT अडॉप्ट्स अ बायोसाइकोसोशल अप्रोच। बायोसाइकोसोशल, तो इट कंबाइंस कॉग्निटिव थेरेपी विद बिहेवियरल टेक्निक्स। ठीक है, जितनी भी हमने थेरेपी अभी तक पढ़ी, CBT उन सबको कंबाइन कर देता है। The rationale is that client distress has its origin in the biological, psychological, and social realms. Hence, addressing the biological aspects through relaxation procedures. जो भी biological aspects होते हैं उनको ठीक करा जाता है by relaxation procedures. Psychological aspects को ठीक करा जाता है through behavior therapy and cognitive therapy. And social ones को ठीक करा जाता है with environmental manipulations. And all this make CBT a comprehensive technique which is very easy to use, applicable to a variety of disorders, and has proven efficacy. So these were all the therapies under the cognitive therapy. नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें हीलिंग में हेल्प कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अ मेजर फैक्टर इन द हीलिंग इज़ द टेक्निक विच इज़ अडॉप्टेड बाय द थेरेपिस्ट एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम। सो कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करी है थेरेपिस्ट ने एंड कैसे वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। If the behavioral system and the CBT school are adopted to heal an anxious client, the relaxation procedures and cognitive restructuring largely contribute to the healing. Second है कि therapeutic alliance which is formed between the therapist and the patient has healing properties because of the regular availability of therapist, the warmth, empathy. सो सेकेंड पॉइंट में ये बोला गया है कि जो थेरेप्यूटिक अलायंस हम बनाते हैं थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट के बीच में, वो हमें हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि हमारा क्लाइंट बहुत एक्सेप्टिंग होता है, वार्म होता है एंड उसमें एम्पैथी होती है। सो जिसकी वजह से हीलिंग बहुत जल्दी हो सकती है। थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं कैथारसिस का। कैथारसिस एक प्रोसेस है ऑफ इमोशनल अनबर्डनिंग, अपनी सारी फीलिंग्स को बाहर लाना, उनको एक्सप्रेस करना। सो कैथारसिस हमारी हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फोर्थ है पेशेंट वेरिएबल्स एंड थेरेपिस्ट वेरिएबल्स। ये कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हमें हीलिंग में हेल्प करते हैं। जैसे पेशेंट वेरिएबल्स होते हैं मोटिवेशन फॉर चेंज, expectations of improvement due to treatment. These are patient variables. Therapist variables are positive nature होना, absence of unresolved emotional conflict and presence of good mental health. मतलब थेरेपिस्ट का भी गुड मेंटल हेल्थ होना चाहिए, पॉजिटिव नेचर होना चाहिए एंड उसका कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, एंड इन सब चीज़ों से हीलिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज़ एथिक्स इन साइकोथेरेपी। कौन कौन से एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें साइकोथेरेपीज़ में यूज़ करने चाहिए? सबसे पहले कंसेंट लेना है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट नीड्स टू बी टेकन। द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्लाइंट शुड बी मेंटेन्ड। Alleviating personal distress and suffering should be the goal of all the attempts of the therapist.
इंटीग्रिटी ऑफ द प्रैक्टिशनर क्लाइंट रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। हम थेरेप्यूटिक अलायंस बनाते हैं, उसकी इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स आर असेंशियल। सब लोग तो साइकोथेरेपी नहीं प्रैक्टिस कर सकते, जिनके पास ट्रेनिंग है, स्किल्स हैं, वो ही बस प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल। रिहैबिलिटेशन का बेसिकली मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू अ हेल्दी और गुड वे ऑफ लाइफ। एंड रिहैबिलिटेशन की ट्रीटमेंट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, रिडक्शन ऑफ द सिम्टम्स या फिर इम्प्रूविंग द लेवल ऑफ फंक्शनिंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ। In case of milder disorder such as generalized anxiety, reactive depression, phobia, इसमें reduction of symptom is associated with an improvement in quality of life. But जो severe mental disorders होते हैं जैसे schizophrenia, reduction of the symptoms may not be associated with the improvement in the quality of life. So ये हैं कुछ components. Now rehabilitation में basically होता क्या है, उसका aim क्या होता है? To empower the patient to become a productive member of the society to the extent possible. पेशेंट की हेल्प करना ताकि वो एक प्रोडक्टिव मेंबर बन सके सोसाइटी का। ठीक है, सो रिहैबिलिटेशन में पेशेंट को दी जाती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सोशल स्किल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल थेरेपी। ये तीनों थेरेपी को अच्छे से याद रखना, इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया था। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करें तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में पेशेंट को कुछ स्किल्स सिखाए जाते हैं। स्किल्स जैसे कैंडल मेकिंग, पेपर बैग मेकिंग, वीविंग, टू हेल्प देम फॉर्म अ वर्क डिसिप्लिन। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग पेशेंट को हेल्प करती है डेवलप करने में इंटरपर्सनल स्किल्स थ्रू रोल प्ले, इमिटेशन एंड इंस्ट्रक्शन। The objective is to teach the patient to function in a social group. एक ग्रुप में कैसे फंक्शन करा जाता है। कॉग्निटिव रीट्रेनिंग इज गिवन टू इम्प्रूव द बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ अटेंशन, मेमोरी एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। सो कॉग्निटिव रीट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस इम्प्रूव हो सके। वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें पेशेंट को हेल्प करी जाती है टू गेन स्किल्स which are necessary to undertake productive employment. So this was all about rehabilitation and उसमें कौन कौन सी थेरेपी दी जाती है। And with this we have ended the 5th chapter of class 12th psychology. If you have any doubt or any queries, please drop them in the comment section below. Don't forget to like, share and subscribe to Humanities. I will see you guys in the next video. Till then, keep learning.